सेम चाहिए यहाँ पे है सामने. So Garv, we start with this question after the break. Yes, sir. This is question number 25 from your book. A very interesting problem. ये flat 10 seconds में भी solve हो सकता है. You can take more. Let's see how you will do it. In the figure, which is on your right side in this case, what is the median of slopes of line OA, OB, OC, OD, OE? Sir, option B. Option B. B for Bombay. Yes, sir. Okay, let's see. तो कौन सी लाइन का स्लोप लोगे आप? ये 5 लाइन है. Which line will have slope as median? Are these lines already arranged? Yes, sir. देखो तुमने क्या आंसर दिया है फिर. If lines are already arranged, are their slope going down, left to right, or going up? Slope बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? Increasing, decreasing slope कैसा है? Sir, increasing. अच्छा, increasing slope है. OA to OE, which has a greater No, sir, it's decreasing. बताओ, you cannot make such mistake right now. Yes, sir. So this is decreasing slope. Which line slope will give you median? Sir, Which line's slope will give you median? Sir, OC. OC. OC का slope निकाल लो. Y2 upon Y1. Y2 is, let's say, 3 upon Y1, which is 0. So 3. Divided by X2, 4 minus 0 upon X1. What is slope of this line? 3/4. 3/4. Answer is 3/4. हो गया question solved. Yes, sir. बोलिए. Yes, sir. तो ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम था जिसमें आपने ये गड़बड़ किया. ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Understood. चलिए आगे चलते हैं. Now we come down to, मैंने आपको बोला था we are doing 3 concepts today. We come down to the second concept. First is done, mean, median, mode. Yes, sir. The second concept is more around statistical, more around statistics, sampling and survey. So I'll go on my whiteboard and this is what we are going to do. Population क्या होता है, sample क्या होता है, sample parameter, margin of error, confidence interval and confidence level. We'll talk about all of this. Yes, sir. ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, confidence interval and confidence level. And then we'll also talk about types of survey and study, observation, experiment, control group, field survey. Yes. So ये मैंने stop share किया. I go to my whiteboard. And is this whiteboard visible to you? Yes, sir. ठीक है. इसको चालू करते हैं. So sir, first let us understand what do we mean by surveys में, statistics में, there is a term called population. So when you do any study, when you do research, when you do survey, field survey, whatever you do, तो आपके research में, statistics में एक word आएगा population. Yes. Population generally means the entire universe or the total set. Yes, so let's say, Garv, that you were doing this study and you decided that you want to study the average fee charged by doctors in Navi Mumbai region. Let's say somehow this is Navi Mumbai region. हमने ऐसे कुछ बनाया. Yes, And you want to find out what is the average first time fee doctor charges. yes, sir. Okay, and through some database, you know that there are, let's say, for example, there are 20,000 doctors in Navi Mumbai. Now, going to each doctor is not possible because then you will waste a lot of time, energy, effort. So you decide that you will possibly take a sample out of 20,000. So 20,000 बन गया population. आपने इसमें से जो एक छोटा सा set लिया, let's say you will talk to 200 doctors. Okay, sir. And talk about their average first time fee. What is their first time visiting fees? If a patient visits, first time कितना fees लेते हैं वो? So 2000 के सामने you are taking a sample. This is called sample size. Population all doctors of Navi Mumbai क्योंकि वो आपका एरिया है. Yes, इसमें से आपने जो एक छोटा सा सेट लिया जिसको आप एक्चुअली स्टडी करोगे, सर्वे करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, इसको हम बोलेंगे सैंपल साइज. ओके. Now what is that you are studying? You are studying average
first time doctor's fee from the patient, new patient that they would charge. अब ये study कर रहे हो. Now this thing is called as sample parameter. Sample parameter. Because you are going to study this, या आप पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो, ढूंढने वाले हो, this is your sample parameter. Yes. Or you can say sample mean because you are talking about average. You can talk about sample mean. बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. तो हम लोग बेसिकली अभी जो बात कर रहे हैं, we are talking about, we are talking about population study, some survey sample, where we have seen what is population, we have seen what is sample size, we have seen what is sample parameter. Yes. Let's say आपने ये study किया और आपने find किया that ₹1,000 is the average first time fee for any doctor that you visit in Navi Mumbai. आप doctors हैं 20,000, आपने study किया 200. So this thing is will जो sample parameter है या sample इसको mean भी बोलते हैं because आपने mean ढूंढा है. This is your sample mean. Yes, sir. Now you want to publish this fees और आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपने you have done a study where you have found this, but you know that you have found it for a sample which was more random in nature. आपको randomness रखना पड़ेगा. No biasness. You have only gone to doctors which are in this region. Then there could be some bias. Or you only have gone to doctors who are MD. Or you have only gone to doctors who are orthopedic surgeons. तब तो गड़बड़ हो गया, biasness आ गया. So you have kept randomness in your study. Yes. बोलो ये समझ में आया जो हम लोग कर रहे हैं? तो रैंडम हमने सैंपल किया, ये वैल्यू आया, इसको हमने बोला ये मेरा सैंपल मीन है. But you know that there may be some error, कुछ error, external error हो सकता है which you are not aware of, and this may not be true fees. Yes. तो जब आप पब्लिश करते हो, आप बोलते हो the average fees is this. Let's say you say plus minus 200 rupees. So average fees for doctors in Navi Mumbai, if you are visiting first time, could be 1,000 rupees plus minus 200 rupees. This thing is called as margin of error. Okay. Margin of error. तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे समझोगे तो आप बोल रहे हो एवरेज फीस 1,000 रुपीज है, एंड बिकॉज देयर शुड बी सम एरर, yes, it could be plus or it could be less than. so the fee could be anywhere between 800 to 1,200. Yes, sir. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने भी ये सर्वे किया, सिमिलर सर्वे किया, और मैंने भी एक 200 का सैंपल लिया, मेरा सैंपल आपसे अलग हो सकता है, रैंडम सैंपल. There is a very high chance, वो चांस के बाद में बात करेंगे, the actual my sample mean could lie anywhere between 800 to 1,200. Yes, sir. मेरा sample mean, मेरा एवरेज इसके बीच में होना चाहिए. Yes. So ये जो इंटरवल है ना, this interval out here, ये जो आपको इंटरवल यहाँ दिख रहा है, this interval is called confidence interval. इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं. मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर. तो ये एक इंटरवल मिला आपको. ओके सर. ठीक है. फाइनली आप आपकी स्टडी में बोलते हो दैट यू आर 95% कॉन्फिडेंट. आपकी स्टडी को आप पब्लिश करते हो और बोलते हो कि आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ स्टडी किया जाएगा नवी मुंबई में और आप कोई और सैंपल लेंगे, वो स्टडी का एवरेज फीस आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर रहेगा. ये 95% चांसेस हैं, यू आर 95% कॉन्फिडेंट दैट एनी अदर स्टडी डन ऑफ सिमिलर काइंड ऑन द सेम पॉपुलेशन विद अ रैंडम सैंपल, आपके जैसा ही सैंपल साइज के साथ, 95% आप कॉन्फिडेंट हो कि उसका जो एवरेज फीस आएगा वो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में होगा. इस चीज को बोला जाता है कॉन्फिडेंस लेवल कि एक रिसर्चर 95% कॉन्फिडेंट है कि कोई और स्टडी कर लो मेरे ही एरिया में विद द सेम सैंपल साइज, वो वाला जो सैंपल पैरामीटर होगा आपका
उसका जो मीन है वो मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में। Okay, sir. समझ में आया? Yes, sir. पॉपुलेशन, सैंपल साइज, सैंपल मीन या पैरामीटर, मार्जिन ऑफ एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। Yes, sir. Can we do some problems now? Yes, sir. अच्छा, before we do some problems, there are 3 types of studies मैंने आपको बोला था। Yes, sir. तो एक होता है ऑब्जर्वेशन, ये एक तरह का सर्वे है। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? अंडर ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर वुड ऑब्जर्व द रिस्पोंडेंट। वो रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व करेगा। तो एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, वो कहीं कोने में कुर्सी लगा के बैठ जाएगा और वो रिस्पोंडेंट को ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे सामान को उठा रहा है, क्या देख रहा है, क्या वे कर रहा है, क्या रीड कर रहा है। The researcher will not participate in the research. The researcher will not interact with the respondent. Respondent may know, may not know कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस तरह के भी रिसर्च होते हैं। दूसरा होता है, आपको पता होगा, फील्ड सर्वे, जहाँ पे कोई क्वेश्चनएयर होगा, रिसर्चर आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, या वो आपको मेल लिखेगा, वो क्वेश्चनएयर आपसे भरवाएगा या खुद भरेगा आपसे पूछ पूछ के, जहाँ पे इंटरैक्शन होता है रिसर्चर का और रिस्पोंडेंट का। सर्वेस, बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। ये मैं आपको समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो आपने वो ऐड देखा होगा कि कॉम्प्लेन पीने वाले बच्चे ज्यादा बढ़ते हैं दूसरे ड्रिंक्स पीने वाले बच्चों से, Yes, sir. और वो उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके फाइंड किया। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा, विल गो टू अ न्यू पेज। एक्सपेरिमेंट में ऐसा होगा कि मान लो एक क्लास है, मान लो आपकी कोई क्लास है 100 स्टूडेंट्स की। इसको आई डिवाइड रैंडमली इन 50 एंड 50 के 2 ग्रुप में रैंडम डिवीजन किया। Yes, sir. इन बच्चों को आईआईटी कोचिंग दिया, इन बच्चों को आईआईटी कोचिंग नहीं दिया, और ये दोनों सेट ने आईआईटी जेईई का एग्जाम लिखा। Yes. एंड आई फाइंड कि जो बच्चों ने आईआईटी कोचिंग लिया था, जिनको आईआईटी कोचिंग मिला था और जिनको आईआईटी कोचिंग नहीं मिला था, उनके रिजल्ट्स को मैंने कंपेयर किया। ठीक है, इनको सेम बच्चे हैं, बस रैंडमली डिवाइड कर दिया, इनको आईआईटी कोचिंग दिया, एंड लेट्स से जिनको आईआईटी कोचिंग मिला उसको 100 पॉइंट्स ज्यादा है कंपेयर टू ऑन एन एवरेज जिनको आईआईटी कोचिंग नहीं मिला। Yes. तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। Yeah. अब इसमें एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। वो ग्रुप जिसको आपने आईआईटी कोचिंग दिया, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। Yes, sir. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जिसको आईआईटी कोचिंग नहीं दिया उसको आपने बोला कंट्रोल ग्रुप। तो इसको कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं दिया, इसको एक्सटर्नल इंटरवेंशन दिया, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। जिसको इंटरवेंशन नहीं दिया, जिसको दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एंड देन यू स्टडी द रिजल्ट एंड फाइंड आउट थिंग्स। दिस इज एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्वे एंड सैंपल। जब हम कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं, करें? Yes, sir. Here on your screen, let's solve a practice problem. ये साथ में करेंगे। Read it out. A random sample of 35 four-door passenger vehicle has mean gas mileage in miles per gallon of 25.9 mile per gallon. रुक जाओ। अब आपने 35 फोर डोर पैसेंजर व्हीकल को स्टडी किया और उनका मीन माइलेज निकाल लिया। उनका मीन माइलेज आया 25.9 माइल्स पर गैलन। समझ में आ गया? Yes, sir. अब वो क्या बोल रहा है? मार्जिन ऑफ एरर है इस स्टडी में कितना? 2.6 mile per gallon. ठीक है। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है? 98%. ठीक है, अब आगे चलो। Of the following, which is the most possible value for the true mean gas of all four passenger vehicles? तो अगर मैं इसको समझूं, मैंने एक नंबर लाइन बनाया गर्व, जिसमें मीन कितना है? 25.9. लोअर एंड पे क्या जाएगा ये वैल्यू? 23.3. और हायर एंड पे क्या जाएगा ये वैल्यू? 28.2. 28.2।
2. 5. Sorry. अब दे आर आस्किंग ये सब में से क्या पॉसिबल वैल्यू है, प्लॉजिबल वैल्यू है। तो देखो 24 इस रेंज के बीच में है क्या? इस रेंज के Yes, बीच sir. में क्या 24 है? 29 है क्या? No, sir. 32 है क्या? No, sir. 35 है क्या? No, sir. तो वन ऑफ द प्लॉजिबल वैल्यू, अगर कोई और स्टडी किया जाए या 98% कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहा है, तो 24 इज अनदर प्लॉजिबल वैल्यू जो किसी का ट्रू मीन आ सकता है या पॉपुलेशन का ट्रू मीन आ सकता है। Yes, sir. अगर रियल में पॉपुलेशन को स्टडी किया गया होता तो शायद उसका ट्रू मीन 24 आ सकता है, Yes, क्योंकि sir. ये उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर है। Yes, sir. समझ में आ गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे की। Okay, sir. चलिए, so let's solve one question. Again, this is a challenge problem. आप करिए। ये थोड़ा सा ना अलग है, रुक जाओ, let's not do this. We do another problem. This is more on probability. We'll do it later. Question number 30 from your book. Okay, sir. 30. Yes, sir. Sir, option A. Option? A. Let's look at this. No. Sorry, sorry. नहीं नहीं Sir, देखो, option B. B. मैं वापस आ रहा हूँ। Okay, sir. A या what is the other one? Sir, B. You said B, right? Bombay. Yes, sir. In order to determine if treatment X is successful, अब इसको पढ़ते हैं. In improving eyesight, a research study was conducted from a large population of people with poor eyesight. 300 participants were selected at random. Half of the participants were given some treatment, the other half did not receive. The resulting data showed that who received the treatment has significantly improved eyesight as compared to जिन्होंने नहीं रिसीव किया। तो कौन से टाइप का स्टडी है ये? Sir, experiment. Experiment. Based on the design and result of the study, which are the following. चलिए, put on your video and tell me. Option read करो जो तो आपको लगता है right है. Sir, treatment X will cause a substantial improvement in eyesight. Okay. Now let's look at why this is problem. Treatment X will cause a substantial improvement in eyesight. इसमें सबसे बड़ी problem ये है कि if you make such a conclusion, you are doing a tall claim where you will say it will cause, होगा ही आपको substantial improvement. Number one. Number two, क्या कोई भी डालेगा तो उसको improvement आ जाएगा क्या? Sir, maybe not. हाँ? क्या कोई भी ये दवा डालेगा, ट्रीटमेंट एक्स लेगा No, तो sir. उसको सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आ जाएगा क्या? No, sir. किसको आएगा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट? Who have poor eyesight? यस। क्या डी में समझ में आता है ये बात कि पुअर आईसाइट वालों के लिए ही है? नहीं। सो डी इज नॉट द राइट आंसर। फिर विच इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर दिस? Sir, option A. ऑप्शन ए। ट्रीटमेंट एक्स इज लाइकली, वो क्लेम नहीं कर रहा है। इफ यू रिमेंबर, ये जो वैक्सीन आती हैं कोविड की, वो ये नहीं बोलते 100% आपको कोविड नहीं होगा। वो बोलते हैं हमारा एफिकेसी 75% है, 91% है, 93% है। लाइफ बॉय बोलता है 99% जर्म्स को मार देता है, 100% नहीं बोलता है वो। Yes, sir. सो ये बहुत बैलेंस स्टेटमेंट है। इज लाइकली टू इंप्रूव आईसाइट ऑफ द पीपल हु हैव पुअर आईसाइट, नॉट एवरीबॉडी, क्योंकि ये उन लोगों को ही दिया गया जिनका पुअर आईसाइट था। 300 ऐसे ही लोग थे। आंसर इज ऑप्शन ए। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. ठीक है, वी गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. This is the next problem on your screen.
ये चैलेंज प्रॉब्लम है, मैं ऑप्शंस देता हूं, अभी आप पढ़ लो क्वेश्चन को। मीडियन सनफ्लावर हाइट इन इंचेस वाई एक्सिस पे है, एक है कंट्रोल ग्रुप जिसको आपने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको आप देख रहे हो कि कुछ उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, आपने इसको दिया। अब क्वेश्चन पढ़ो, देन आई विल शो यू ऑप्शंस। विच कंक्लूजन इज नॉट वैलिड, ये पूछ रहे हैं। जब तुम पढ़ लोगे मुझे बताना, मैं ऑप्शन शो करूंगा। ओके सर। सर डन। सो द ऑप्शंस आर नॉट वैलिड, पूछा है उसने। एक को मैग्नेटिक फील्ड दिया था, एक को नहीं दिया था। यस सर। Which option is not valid? ए बी सी डी में से विच कंक्लूजन इज नॉट वैलिड, बोलिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वाई? Sir, there is nothing given about weight here. There is nothing given about weight. Answer is option A. Absolutely right. Good. ठीक है, Yes sir. आगे चलते हैं। कोई डाउट है इसमें? No sir. सही किया आपने, वेरी गुड। ये वाला देखो। Random sample. Sir, option C. Option C. Let's see why C. A random sample of international flights showed that 79% of flight arrived within 15 minutes of their scheduled arrival time. इस estimate में एक margin of error है 3%. तो मतलब 76 से लेके 82% के बीच में 95% confidence level. Yes. Which of the following conclusion is best? Sir, Between 76 to 82% arrived within 15 minutes of their scheduled time. Absolutely right. एकदम सही. Any other doubt या कोई और ऑप्शन लग रहा है क्या probable? No sir. आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इस तरह के अब क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आप अच्छा कर रहे हो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको अच्छा मैनेज कर पाओगे। Yes sir. चलो ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। 1 minute। Sir, option B. ऑप्शन B. बी। B. Yes sir. बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली। B for Bombay. अच्छा चलो, लेट्स सी, रीड इट आउट फॉर मी। In a poll of 1578 randomly selected American adults, 44.8% of the respondents said that the airline should allow in-flight calls on airplane. The poll reported a margin of error of 2.5% at a 95% confidence level. Which of the following is most likely to be equal to the percentage of all American adults who say that the airline should allow in-flight calls? तो अगर हम पूरे अमेरिका का ये करेंगे तो क्या लाइकली वैल्यू हो सकता है? 44.8% मीन है, इसका 2.5 माइनस करो, सो लोअर एंड पे कैन आई से दिस इज 42.3। Yes sir. एंड हायर एंड पे दिस इज 47.3। Yeah. हाँ, Yes sir.
नाउ इनमें से अगर हमने पूरे अमेरिका का किया तो लाइकली वैल्यू क्या है? 40 के रेंज में नहीं है, 43 है, 48 नहीं है, 95%। तो कॉन्फिडेंस लेवल है, आंसर इज ऑप्शन, जैसा आपने बोला, एब्सोल्युटली राइट। Yes, sir. समझ में, मतलब यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ दिस, आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से? Yes, sir. गुड। नाउ वी गो टू द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, विच इज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब हम इस पे आते हैं एंड देन वी विल डू कपल ऑफ प्रॉब्लम्स और फिर हम इसको वो कर देंगे। तो ये कैसे है स्पॉटलाइट का? हाँ, so Garv, this is box and whisker plot that we are doing, and box and whisker plot is based on a concept in mathematics or maths which is called as percentile, Awesome. और इसको quartile, percentile, quartile, decile. Yes. So do you know what are these? What do you mean by percentile? Percentile का क्या मतलब है? Percentage नहीं, percentile. The percentile, you could say like how could I say, like how to describe? So cent means what? So the percentage, like Century means what? sir, 100. 100. Cent comes from that only, 100. So So it out of basically 100. means, मान लो 100 बच्चों ने IIT जे का एग्जाम दिया, 100 बच्चों ने, 100 बच्चों ने, ठीक है? Yes, sir. मैंने उनको ऑर्डर में अरेंज किया, 100 बच्चों को किसी ऑर्डर में अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 के मार्क्स के बेसिस पे, Yes, sir. where you have this is the topper student और ये इसका सबसे लीस्ट स्कोर है। Okay, sir. So I say कि जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी था, I have divided them into 100 equal parts, where each part represent A percent. 1% of that data. तो अब मैंने क्या बोलना का कोशिश किया कि ये जो टॉप 1% डेटा है, इसको मैं बोलूंगा 100 परसेंटाइल। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसको मैं बोलूंगा 99 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। Right. जो बीच में आ रहा है उसको मैं बोलूंगा 50th परसेंटाइल, Percentile. है ना? Yes, yes, sir. तो दिस इज परसेंटाइल। इसी तरह से डेसाइल क्या होगा? आई हैव समथिंग, आई डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, वेयर ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 10% ऑफ दैट डेटा। Yes, sir. क्वार्टाइल क्या होगा? व्हाट इज क्वार्टाइल? व्हाट वुड बी क्वार्टाइल? वेरी सिंपल। 25%. I have something, I divide it into 4 equal parts. Each of Each part 25%. represents 25. ये टॉप 25, ये उसके बाद का 25, ये उसके बाद का 25 और ये बॉटम 25। 25. बोलो समझ में आया? Yes, sir. So this is called as quartile. So the concept that we are doing now, it is called box and whisker plot. Whisker plot. And this is largely based on this concept of quartile. Quartile के concept पे based है। Yes. This is a way to represent a data. किसी डेटा को represent करने का तरीका है। जैसे स्कैटर प्लॉट है, जैसे बार ग्राफ है, वैसे एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है। ठीक Yes, है, sir. अब इसको पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। ये गेट लगाओ। अब ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को समझने की कोशिश करते हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डेटा किसी बॉक्स के फॉर्मेट में। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में क्या होगा? एक बॉक्स होगा, विस्कर मतलब क्या होता है? कैट की होती है ना विस्कर्स। Yes, sir. तो इस तरह से ये बॉक्स के भी कुछ विस्कर होंगे, दोनों साइड पे कुछ निकला हुआ होगा मूंछों जैसा, Okay. और एक बॉक्स होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए, and hence it is called box and whisker plot. So let's try and understand box and whisker plot. तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डेटा इसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग वो क्वार्टाइल पे आएंगे और फिर इसको आगे कंक्लूड करेंगे। सो जनरली रिप्रेजेंटेशन वुड बी, लेट्स से देयर इज टोटल ऑफ समथिंग। कुछ मेरे पास टोटल है, तो आप देखोगे कि कोई एक सर्वे होगा जिसमें एक बॉक्स दिया होगा आपको। Yes, sir. बॉक्स की ऐसी 2 विस्कर्स निकली होंगी, नीचे एक नंबर लाइन होगा। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं।
और हम लोग उनका एसएटी इनटेक क्लास जो है उनका एसएटी स्कोर को प्लॉट कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस विस्कर इज एट 1600, ये वाला इज एट, मैं ऐसे लिखता हूं अभी 1300। यहाँ पे बीच में कोई एक लाइन होगी, जरूरी नहीं है बीचों बीच हो, कहीं भी हो सकती है बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे भी मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से 1480। ठीक है, अब अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, देयर आर 4 पार्ट्स टू दिस डेटा। दिस इज योर पार्ट 1, बॉक्स के बाहर इस तरफ, दिस इज योर पार्ट 2, दिस इज योर पार्ट 3, और बॉक्स के बाहर इस तरफ दिस इज पार्ट 4। तो बेसिकली ईच पार्ट इज अ क्वार्टाइल। ये आपका टॉप क्वार्टाइल है, फिर आपका ये नेक्स्ट क्वार्टाइल, फिर नेक्स्ट क्वार्टाइल, और ये बॉटम क्वार्टाइल। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में यहां पर ये वाला जो पार्ट है, आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा Q1, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लिखा होगा Q3। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। ये जो बच्चे होंगे, ये टॉप 25% डेटा है आपका, टॉप 25% बच्चे हैं जिनका स्कोर है 1600 हाईएस्ट। ये आपके नेक्स्ट 25% बच्चे हैं। तो यहां पर जाके ये बच्चे कितने हो गए? 50%। ये लाइन किसकी है? 50%। और यू कैन से दिस इज नथिंग बट median. This represents median. Yes. Then you have balanced 25% here, and आखिरी के 25% बच्चों को जो एडमिशन मिला है वो यहाँ पे। Yes. बोलो, ये आया समझ में? Yes, sir. ये Q1 है क्वार्टाइल 1, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 3, बस ये लिखा होता है। क्वार्टाइल 2 मतलब मीडियन होता है। Yes. ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. This is your top quartile 25%, this is next 25%, this is next 25%, and this is balanced bottom 25%. Yes. This is called as box and whisker plot. Okay. हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. What will be range of this data? So 1300 to highest minus lowest, 300. है ना? इसी तरह से एक होता है, या आप समझ लो इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR. This is given by Q3 minus Q1. तो मान लो this is at 1500 and this is at 1320. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितना हो जाएगा? 1500 minus 1320, 180. इसको बोलते हैं IQR, Q3 minus Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये ध्यान रखना। Yes, sir. फिर अब आते हैं आउटलायर। एक और कॉन्सेप्ट है, वी आर डूइंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड आउटलायर। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? तो वो वाले डेटा पॉइंट्स जो आपके इस रेंज में लाई नहीं करेंगे, या तो वो लोअर एंड के बाहर होंगे या वो हायर एंड के ऊपर होंगे, उनको हम आउटलायर्स बोलेंगे। वो आउटलायर तब बोला जाएगा जब, तो आप आउटलायर करने का क्या तरीका है? नंबर 1, IQR निकालो। स्टेप 1, आई गिव यू स्टेप्स। आउटलायर फाइंड करने के तरीके, आई एम राइटिंग डाउन द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग IQR. Step 1 is find IQR. No, I am writing down the steps to find outlier. Step 1 is find IQR. Step 2 is find 1.5 times of IQR. 1.5 times of IQR निकालो। Step 3, let's go for lower end. नीचे की तरफ कोई आउटलायर है क्या? अगर आपका पॉइंट Q1 minus 1.5 times IQR है, अगर आपका पॉइंट इससे नीचे है कहीं, Q1 minus 1.5 times IQR, तो वो पॉइंट आउटलायर होगा। ओके सर। हायर एंड पे आउटलायर कैसे ढूंढते हैं? हायर एंड पे आउटलायर वो आउटलायर होगा, सॉरी इससे लोअर बोला मैंने, ये वाला साइन लगेगा। करेक्शन, यस, दिस साइन। If your lower end is less than this, yes, higher end वो वाला डेटा पॉइंट which is greater than Q3 plus 1.5 IQR.
अगर कोई इस केस में तो होगा नहीं क्योंकि 1600 के ऊपर कोई पॉइंट होता नहीं है एसएटी में, बट किसी डेटा सेट में इफ दिस इज ग्रेटर देन Q3 plus 1.5 IQR इट विल बी अ हायर एंड का आउटलायर। बोलिए समझ में आ गया ये सब आपको? यस सर। तो आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट रीड करना आ गया, यस सर। आपको ये समझ में आ गया IQR कैसे निकालते हैं, आपको ये समझ में आ गया आउटलायर कैसे निकालते हैं। यस ये सब आप चाहो लिखना है आपको तो लिखो, नहीं तो विल गो एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सर, लेट्स गो एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, so let on the given data I'll ask you something, true or false में जवाब देना है आपको। ओके सर। ये जो स्टैनफोर्ड SAT इनटेक क्लास या स्टैनफोर्ड इनटेक क्लास SAT स्कोर रिप्रेजेंट किया गया है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में, आपको ट्रू एंड फॉल्स बोलना है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा। ओके सर। 25 पर नहीं, let me put it in the other way. At least 25% of student scores more than 1320 on SAT in admitting in Stanford. At least 25% of students scores 1320 or more. True या false? सर ट्रू। True. कम से कम 25%. Yes, 25% से ज्यादा लोग ओके। 1320 से ज्यादा स्कोर करते हैं। यस सर। Okay. Okay. Can I say now again true or false? ओके सर। 25% students of intake class scores less than 1500. सर हाउ मेनी? 25% of intake class scores less than 1500. सर फॉल्स। False. Because less than 1500 कितना percent of class है? 75%। 75%. आया समझ में? यस सर। चलो, now let's go to some problems and solve them. So ये आपके बुक में होना चाहिए क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35 from your book. Take 1.5 minutes, solve this and let me know. Question number 35 on your book. सर ऑप्शन ए। Let's see. We go back. Read out the question. The box plot suggests that about 25% of gyms in Saints will have more than what number of gym members? Have more than what number of gym members? About 25% of gym. Yes, sir. This is 68. Can I say this is 70? Yes, sir. So these 25% of gyms will have more than 70 members. Yes, sir. आपने कौन सा ऑप्शन बोला था मुझे? A. A. Let's see. 50 members. कहाँ पे है 50? ये रहा 50. This is 50. Yes, sir. है ना? More than 50 members. कितने परसेंट ऑफ जिम में होगा? 25%. 100%, sir. Oh, yes. More than 50 members would be there in 100% of the gym. Yes. They are asking, यही पूछा है क्या? नहीं. They are asking about 25% of gyms will have more than how many number of members? 70. 70. 100% will have more than 50. आपने 50 आंसर दिया है. बोलो समझ में आया गड़बड़? Yes, sir. Let's solve one more problem. एक और क्वेश्चन करते हैं. Question number 37 on your book. Question number 37.
थोड़ा सा अलग है, एक डॉट प्लॉट दिया है आपको, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, ओके। अभी मैं नहीं जानता राइट है या रॉन्ग है, यू टेल मी एंड हेल्प मी हाउ ऑप्शन बी। ओके तो सर। फर्स्ट रीड इट आउट लाउडली, जोर से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। The dot plot on left top shows the number of songs on each album in Sal's collection. Each dot represents different album. Left bottom is the 5-number summary for these data. According to the देखो, one. वॉट्स एंड विस्कर प्लॉट को 5 नंबर समरी भी बोलते हैं, Yes, sir. ठीक है, जैसे ये दिया है, अगर आप समझोगे तो ये वही है, मिन, Q1, मीडियन, Q3, मैक्स, ठीक है, ओके। Left bottom is the 5-number summary for these data. According to the 1.5 IQR rule for outliners, how many high outliners are there in the data set? ठीक है, अगर हाई आउटलायर निकालना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले IQR निकालो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ IQR? Sir, 4. 4 और 1.5 टाइम्स IQR करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 6. 6। सो 1.5 IQR इज 6, ठीक है। अब हाई आउटलायर निकालना है तो क्या करना है? Sir, plus Q3. तो Q3 प्लस 1.5 IQR is equal to 19. Yes, sir. Any value greater than 19 will be a high outlier. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. How many values or albums have more than 19 songs? 1. Only one. There is only one album which has more than 19 songs, which is जिसमें 20 songs. So answer is 1. Find out how many low outliers are there. Low outliers. Yes. So it was. So 0. 0, क्योंकि आप क्या करोगे लो आउटलायर निकालने के लिए? Q1 minus this. IQR. So that is 3. Let's find out how many albums have less than 3 songs. There is no such album. Answer is 0. Beginning. Yes, sir. There is no outlier at low end. Yes, sir. So this particular question, with this question we finish our session now. ये chapter number 9 हुआ. Are you solving all problems on grade scope? वो test दे रहे हो आप regularly? Sir, yeah, I've given. I don't know if there was a new test uploaded last Sunday. I don't know that. I haven't नहीं checked. तो आप इस अगर लास्ट संडे किया था तो उसमें 2-3 टेस्ट हुए होंगे, मैथ्स के, राइटिंग लैंग्वेज के, वो सब देते जाना। इस संडे को कुछ और अपलोड होगा, वो भी देते जाना। Okay, sir. Okay? Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू। So this Saturday you will have your English class No, sir. at regular time. Like I asked, like ma'am, she नहीं said there होगा, was no. अच्छा, नहीं होगा। आप टाइम टेबल में देखना, सुरजीत मैडम से पूछना, वो टाइम टेबल में देख के बताएंगे आपको। There is a class. Okay, sir. Coming So, Saturday 6:30 to 8:30. So that's what I asked her. So I would like to prepone the class because I have a class like 6:30 to 9. But I don't think madam is free. Oh, Madam is not free before 6:30. okay. तो फिर आप अगर ऐसा है तो आप प्लीज इन्फॉर्म सुरजीत टुमारो, सुरजीत मैडम टुमारो,